یہ جیسے آپ اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی آپ جماعت کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، گھر کی مرغی دال برابر ہو یہ گئی تو جی آپ نہیں کے نہیں، لیے۔ یہ تو آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا۔ میں الزام صحیح لگا رہا ہوں نا کہ آپ کو اب ہماری کوئی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی، اچھا نہیں نہیں، اب اچھی ساری کیسے باتیں لگے؟ غلط میں آپ لگ کو رہی بتاتا ہوں نا، میں بتاتا السلام ہوں، علیکم ورحمۃ میں اللہ اب آپ میری وبرکاتہ۔ بات سنیں نا۔ میری تقریباً 300-400 لوگ ہیں میری فیملی میں، اور بھی ہیں جو مرزئی ہیں مرزا اب دیکھیں نا، فیملی۔ آپ نے لفظ مرزئی استعمال کیا ہے، اب آپ اگر احمدی ہوتے تو آپ جی کو پتہ لگتا کہ یہ کتنی بڑی چونڈی بڑھتا ہے لفظ، ہمیں کتنا تکلیف سے لفظ ہے یہ کوئی ہمارے چونڈی لیے۔ نہیں، میں جب سکول تھا تب سے مجھے مرزئی کا تانا دیا جاتا آپ تھا، خوش ہوتے تھے، آپ خوش ہوتے اور تھے، اور آپ نہیں، خوش ہوتے تھے جب آپ کو مرزئی سچ کہتے کا تھے؟ نہیں پتا تھا ہمیں، سچ کا نہیں پتا تھا، ہمارے سے سچ کو چھپایا گیا سچ تھا، ہائڈ آج بھی کیا نہیں گیا آپ تھا۔ کو پتا، جس آج بھی نہیں طرح سچ آپ کو پتا۔ جس طرح آپ کسی کے آپ پیسے بھی مت دیکھیں۔ آپ بھی براڈ پہ آ کے آپ مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت عقل اور شعور ہے، لیکن نہیں خدا نہیں کی یار، میں آپ قسم جیسا آپ آدمی کی ہوں آنکھیں بند ہیں، آپ کا دماغ بند ہے، آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یار، آپ کو پتہ جب لگ گیا نا، آپ کو میں نے حقیقت خوشی کا کا پتہ اظہار آپ چلے کے گا لیے نا، کیا۔ حقیقت کا، آپ جوتی اتار کے اپنے سر پہ ماریں گے، ہاں جی، کہ کیا میں کس کلٹ میں رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہی بات سمجھاتا ہوں کہ جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہو نا تو اتنے بڑے بڑے چودھری مت بنا کرو۔ جب آپ اتنے پیسے خرچ بیٹھتے ہو، اتنے اپنے آورز لگا یہ تو بیٹھتے ہو، عجیب ہی بات کر رہے ہو بیچ میں، اس کا تو پھر ذکر بعد ہی میں نہیں آپ بات لوگوں کا۔ کی چیخیں۔ میں تو اس بات پہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ میں نے پیسے میں آپ دیے، کو میں یہ نے والی واپس بات بتا رہا ہوں، میں بھی تجربے کی بات بتا رہا ہوں بھائی، کہ جب آپ اتنا زیادہ عہدے دار اور اتنے زیادہ وہ بن جاتے ہو نا، اچھا میں کر واٹر بیٹھتے ہو صاحب، اس لڑائی ایریا کرنا میں، مقصد تبھی آپ نہیں کو ہے۔ ٹھوکر لگتی ہے۔ واٹر صاحب، لڑائی جی کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ ساکی صاحب یہاں ہمارے جی سامنے، آپ کے بھی سامنے، ہمارے بھی سامنے، یہ ان کا تعلق جماعت ہم جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں، مجھے گالیاں دی ہوئی ہیں یہاں پر ٹک ٹاک پہ۔ ان سے پوچھ جی لیں، اگر آپ کو ان پر کوئی شک ہے ان سے پوچھ لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ سے دھوکہ کر کے آپ سے کوئی ذاتی غرض پوری کرنا چاہ رہا ہو۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ازر من الشمس آتے ہیں۔ بالکل یہاں صحیح پر یہ فرمایا سارا آپ نے۔ دھندا ہے بھجن، دھندا گندا ہے۔ بھجن کہاں پہ اچھا، اب میں تو صرف آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، دھندا کہاں پہ نہیں ہے، کہاں پہ جہاں نہیں ہے دھندا؟ پر وہاں پہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو کوئی پابند نہیں کر رہا کہ اتنا دو گے تو آپ اس مذہب میں رہو گے ورنہ مذہب سے نکال دیے جائے، وہاں پر اور نہیں نہیں عامر صاحب، ایسے کبھی نہیں کوئی کرتا، اور ایسے۔ نہ ہی کبھی ہوا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ آپ کے ساکی کو ساتھ اگر چندہ نہ دینے کی وجہ سے جماعت سے نکالا گیا، اس نے خود چھوڑی ہے۔ السلام جوجو بھائی کو علیکم چندہ نہ دینے واٹر کی بھائی، وجہ میں سے آپ کو نکالا گیا۔ واٹر بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں دھندا کہاں نہیں ہے۔ دھندا اسلام میں نہیں ہے۔ اور جان دے پراوا، جان کی دے، بھراوا ہر جان دے، سال تو میری حج گل کی سن، فیس بڑی جیڑی ہوتی دل، ہے، میری اور گل ہر واٹر سال تو حج عمرے کی جیڑی، فیس بڑی ہوتی ہے یار۔ او میری گل کہاں تو سے سننا دھندا پوری، نہیں ہے بھائی؟ ہر چیز او دھندا ہے، سب او دھندا میری ہے۔ گل تو سننا، کرایہ نہیں دینا۔ یہ ہاں تو تو پھر دنیا جماعت داری ہے، نے، یہ میں نال تے بدن ہی اردو کا جانا۔ جیسا کہہ رہے ہیں کہ جماعت کی مسجدوں کے بل نہیں آتے، مربی کی تنخواہ نہیں دینی، اور وہ مربی بھوکا دی مر جائے تنخواہ بیچارہ۔ جڑی ہے تے مسجد دے بل جڑے نے ملین دے وچ آندے نے۔ کیوں نہیں؟ کینیڈا میں مرزا ملین میں مسرور بل صاحب آتے جڑے نے ہیں۔ پھر جڑی اسلام آباد والی مسجد ہے، مرزا مسرور صاحب کم کر کے کیوں نہیں ہوتا بل اپنے پلیے پا لیندے؟ بس پھر کام کر کے بل دینے ہوندے تے پھر بلاول بھٹو بھی اپنے بل آپ ہی دے رہا ہوندا۔ اور بلاول کام اور کر کے آپ ہی بل، دے رہے نے، اور کام کر بلاول کے اور بل آپ ہی بھائی دے رہے میرے نے۔ اور تیرے جیسے بندے دیتے ہیں، میرے اچھا تیرے جیسے بندے کام کر کے بل دیتے ہیں، اور اور وڈے چھڈ بندے دیو نہیں واٹر کام کر کے صاحب، بل دیندے۔ وہ کدے نہ وڈا بندہ ہو گیا جڑا 2000 تو پہਲਾਂ جڑا وے کدھر کدھر دھکے کھا رہا سی، اج وہ وڈا بندہ ہو گیا۔ بس یہ تو اللہ کے رنگ ہے نا پراوا۔ اللہ دے رنگ نہیں، یہ صرف کلٹ زرداری جیل ایک میں تھا، کام ہے، آج کلٹ۔ زرداری ہمارا صدر ہے۔ پہلے زرداری کو ہم بیماری کہتے تھے، آج ہم کہتے ہیں سینئر ترین سیاستدان، پاکستان کا مستقبل بچا ہی زرداری سکتا ہے۔ وقت وقت کی بات ہے۔ واٹر صاحب پتا تھانوں بھی ہے اصل گل دا کہ جھوٹو جھوٹ چتالیا وے، بس انج تسی ایک ضد تے اڑے رہو۔ اور یار ضد پہ کیا اڑے، بات پتہ ہے کیا ساکی، میرے سے سیدھی بات سنو، میں یہ جماعت چھوڑ کے کسی اچھی جماعت میں جاؤں گا نا، ہاں جب میں دیکھوں گا کہ تمہارے میرے سے بھی زیادہ بھیڑے گرک ہوئے ہوئے ہیں، تو میں اچھا تمہاری میری گل، جماعت میں کیوں آؤں؟ اچھا واٹر بھائی میری گل سنو، تسی میں ایک تمہاری گل کر، جماعت میں آؤں کیوں؟ کون سی گل تے جماعت سن میں لو گیا نا، ہے؟ او گل تے سن لو نا واٹر بھائی، ہاں دیکھو تسی کڈی اچھی گل کیتی ہے، میں کسی اچھی جماعت چ جاواں گا، بالکل، منو سال ہو چلا چھڈے ہاں، ہاں میں کسی جماعت چ گیا ہاں، الحمدللہ میں اگے نو زیادہ خوش ہاں، اگے نو زیادہ پیسے کما رہے ہیں، اگے نو زیادہ نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ ماشاء کیڑی اللہ، چیز دی کمی آئی ہے؟
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9 ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਸਭ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਵਹਾਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਜਫ ਅब्बास ਹੈ, ਆਮਰ ਸਿਆਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। और यार तेरी तो अपनी बहन नबी है तेरी तो अपनी बहन नबी बनी हुई है, नहीं, ये मिर्जान है यार, थोड़ी बहन है यार। और तू उसकी मिन्नतें कर रहा था कि यार आपने 1 घंटा ना, प्लीज 1 घंटा ना मेरे साथ इंटरव्यू जरूर करना है। हाँ, तो उसने मुझे उस बात को छोड़े। आपको ये है जो कि बात मैंने आप कह रहे हैं, उसको मैं छोड़ दूं। किसी जगह जाना है और भाई हम आपके दुश्मन थोड़े ही हैं। आमिर नजीर भाई सुबह उठते हैं, शाम 10 बजे तक वो आप लोगों की इस्लाह के लिए यहाँ पर जोर लगाते हैं। एक ही बात आपके अंदर डाली गई है कि मुसलमान जो है वो जमात अहमदिया से बुग़्ज़ रखते हैं। और भाई हमें क्या, कुछ दो ना दो, जितना दो आप ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, खाओ, ਇਮਰਾਨ चंदा ਭਾਈ, दो, हमें क्या। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਈਯੂ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਈਯੂ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाटर साहब मेरा एक क्वेश्चन है वालेकुम। यार जो भाई अब बात कर लेने, जब अगर मुझे बारी दी है उन्होंने। अच्छा ठीक है, कर ले आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आमिर भाई मौजूद है? वालेकुम सलाम। हाँ जी मौजूद है। आमिर भाई, एक तो उस दिन जो बात हम चल रही थी मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी साहब की किताब वाली, उस पर फिर बकायदा जो है मैंने बात भी की थी वहाँ पे जाके दाफिल बला वाले हवाले पे, ठीक है, हसूर वाली बात पे, कि अगर आप नूरुल कुरान से कहते हैं कि इल्ज़ामी रंग में है तो चले इसका जवाब दे दें फिर दाफिल बला का। ये तो कुरान से आप ऑन कर रहे हैं ना। तो उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया है, वो जवाब मैंने जो है वो नोट भी किया है और उनका मौक़िफ़ लिया भी है। उन्होंने तहकीकी जवाब भी दिया अपना। अदर भाई जिस मौजू पर वो बात कर रहे हैं भाई उनको कर लेने देनी, ये तो अलग मौजू है, इस पर हम बात करेंगे बाद में। नहीं, मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने उनसे जवाब लिया है, तहकीकी भी इल्ज़ामी भी। ठीक है। तो इसके लिए मैं टाइम रखना चाहता हूँ आपसे सवाल जवाब का और ज़िया भाई से। तो आप मुझे ये बता दें, वलीद से भी मेरी बात हुई है, वो कहता है कि आप आमिर भाई से पूछ लें, जब वो कहेंगे तो मैं लाइव लगा दूंगा, आप सवाल जवाब कर लेना। अभी मैं सिर्फ 1 घंटा बिजी हूँ, मैं इसके बाद फारग हूँ, आप बेशक कर लेना। 1 घंटा मुझे दे दे, मैं गाड़ी वॉशिंग पे लगानी है, इसके बाद मैं यहीं पर हूँ इंशाल्लाह, फ्री हूँ। चले मैं देख लेता हूँ फिर। आज आप कह रहे हैं आज कर लें इस पे बात? बेशक आज कर लें, कल कर लें, जो मर्जी करें, कोई मसला नहीं। तो ज़िया भाई आ जाएंगे तब तक? आ जाते हैं। अच्छा ठीक हो गया। और दूसरा मैंने आपको कुछ सेंड किया था तो वो आपने उस पर थोड़ा कमेंट चाहिए थे आपके। हाँ देख लिया मैंने, उस पर भी करेंगे, इनको बात कर लें। ठीक हो गया जी जो साहब बेशक करें बहुत। जी वाटर भाई, ये जो जलसा होता है, अभी बचपन से जलसे में रबुए से मेरा ख्याल है शुरू हुए होंगे। आप मुझे बता सकते हैं इस जलसे का हकीकत क्या है, इसमें इस्लाम का क्या तस्वर पेश किया जाता है, ये कौन सा इस्लाम का कोई अहम रुकन है कि ये हर साल जलसा होना ही होता है? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप धंधे की बात कर रहे थे, फिर मैं धंधे की तरफ आऊँगा कि ये कौन सा धंधा है। देखिए मेरी बात सुनने, अब आपका ना दिल बदल चुका हुआ है। देखिए हमारे लिए वो जलसा ही है। जिस तरह आम जलसों में तकरीरें होती हैं, वहाँ भी तकरीरें होती हैं। हम हर साल वहाँ पे मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है और थोड़ा सा रिफ्रेशर भी हो जाता है। अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं ना, कोई बुरी बात तो सुनने को मिलती नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड बताएं इसकी। बैकग्राउंड क्या है? हजरत मसीह मौद ने कहा है कि हर साल जलसा हुआ करेगा और मिलना चाहिए अहमदियों को आपस में, और उसमें आपको अच्छी तरबियत भी हो जाती है। अब जैसे तबलीगी जमात वाले भी जलसा करते हैं सालाना, सैर रोज़े भी करते हैं, तबलीग पर भी जाते हैं। अब मैं उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दूं कि वो बुरे काम करते हैं उसमें? नहीं भाई, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं लोग और अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं।
तरबियत होती है, 5 वक्त बंदा नमाज पढ़ लेता है, अपने सारे पाकिस्तान के बुजुर्गों से मिल लिया करता था, अब सारी दुनिया के बुजुर्गों से मिल लेता आप है। मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि मैं बदल गया हूँ, मैं बदल नहीं गया। मैंने जो रिसर्च की है, मैं पूरी हिस्ट्री जाके पढ़ी है। आपकी रिसर्च गलत भी हो सकती है, अच्छा, रिसर्च आपके गलत भी पास साबित हो ये जाती है। पहला जलसा जो हुआ था 20 दिसंबर 1891 में मिर्जा कादियानी साहब ने जलसा कादियान में करवाया था, जिसमें देखिए उनका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। आप मुसलमानों को शो करने के लिए ना कि गुलाम अहमद नाम कादियानी, नहीं था, ये भी मैंने पढ़ा है, उनका अहमद नाम नहीं था, उनका नाम सुंदी था। मैं इस पे बहस नहीं करना और ये चाहता। पुलिस मैं इस पे स्पिरिट बात की करता बातों पे गौर ना किया करें, वो पागल आदमी है। जी जी, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ, छोड़ मेरे दे पास छोड़ दे, वो documents हैं। पुलिस आप- स्पिरिट ने अपने निकाले हुए हैं। और जो मेरी पुरानी बुक है मिर्जा साहब की, उसके अंदर नाम दर्ज है। आप इस बात पे ना बहस करें। मैं अल्लाह के फजल से झूठ नहीं बोलता अपनी देखिए लाइफ। आपका नाम यहाँ जूजू लिखा हुआ है, मैं आपका कोई असल नाम इस जावेद हो। झूठ मैं पास भी नहीं किसी को करता, क्योंकि मैं पहले तस्दीक करता हूँ। ठीक है, पहला जो कादियान में जलसा हुआ था 20 दिसंबर 1891 में हुआ था, जिसमें 75 लोग आए थे, सिर्फ 75 हाजरीन थे कादियान में। ठीक है। अच्छा, ये जलसे का मकसद क्या था, ये क्यों शुरू हुआ, इसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हुई, एक्चुअली ये इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। मिर्जा गुलाम कादियानी जल्दी बता दें, आपके कॉन्सेप्ट बहुत लंबे हो जाते हैं। नहीं, मैं मुख्तसर कर देता हूँ, मैं बिल्कुल मुख्तसर बात कर देता हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी जो उनका एक बचपन का दोस्त था, उनका कज़न भी था, उनका फैमिली मेंबर भी था। वो मिर्ज़ा साहब के जो बाप हैं गुलाम मुर्तज़ा, उनका भाई गुलाम महिउद्दीन का बेटा इमामुद्दीन, वो एक सालाना जलसा मेला वो करवाता था कादियान में। वो सरबराह होते थे कादियान के। उस मेले को कहा जाता था चूड़ा मेला। जो स्वीपर झाड़ू देने वाले होते थे ना, वो मेला करवाते थे। ये 1931 तक जारी रहा था और 1873 से ये शुरू हुआ था, जिसमें जो मिर्जा गुलाम कादियानी थे इस मेले के मेंबर होते थे। इस मेले के इसके साथ इमामुद्दीन के साथ। और ये चूड़े कौन थे, ये चूड़े कौन थे, ये एक हिंदुज़म एक सेक्ट है, वो उसका पार्ट था। इसको बल्मीकी भी कहते हैं। और इनको एज ए बंगी भी इनको कहा जाता है, ये बंगी ग्रुप भी इनको कहा जाता है। ये लोग जो थे सिख, मुसलमान, ईसाई में तब्दील हो गए थे ये लोग। इनका दीन की इबादत का तरीक़ेकार जो था, वो इनको लाल बेगी चूड़ा कहते थे इनको। इन बंगियों का दावा था कि वो बाल्मीकि जिसे लाल बेग भी कहते हैं, एक भरम होता था। वो उसने रामायण तसनीफ की थी। इस बंगी जो होते थे वो कहते थे कि ये हमारा सरपरस्त है, और उसकी सुन्नत के मुताबिक ये चलते थे। तो हुआ ये कि जब ये जलसा कंटिन्यू चल रहा था, 1965 में इमामुद्दीन और मिर्ज़ा साहब जो है ये चले गए लाहौर। वो आपने मशहूर वाक़या सुना होगा, वो पेंशन वाला। वो पेंशन में, क्योंकि मेला तो साल बाद चले भाईजान, ये बात ना हो रही है लंबी, मैं सिर्फ आपको इतनी बात का जवाब दे देता हूँ। ये जो मिर्जा कास्ट है ना, ये मंगोलों की कास्ट है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था। कोई चूड़ों में आज तक मैंने पट्टी तो सुने हैं, लेकिन चूड़ों में कभी भी मैंने कोई मिर्ज़ा नहीं सुना। तो बराए मेहरबानी, मिर्ज़ा ख़ानदान जो है ये बरे सगीर में जो मुग़ल हाकम रहे हैं, ये वो ख़ानदान भी है, मंगोलों का ख़ानदान है। ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, हर जगह पाया जाता है। लेकिन ये कोई चूड़ा ख़ानदान नहीं है, और चूड़ों में नाम गुलाम मुर्तज़ा नहीं होता, मुसलमानों वाले नाम नहीं होते। बराए मेहरबानी, ये जो पुलिस स्पिरिट उल्टी सीधी बातें बताता है ना, वो पागल आदमी है, उसकी बातों पे गौर ना किया करें। वो सच्ची और सच बोलते हैं ना, आप उसको पागल वो पागल है, पुलिस स्पिरिट का दिमाग खराब है।
वो कहीं मिर्जा साहब तो जो जमीमा बराहीम में कह रहे हैं यार सफा इतने नंबर गोरे 7 पे, चिट्टे, वो कहते हैं मैं इतने मुगल हूँ। गोरे चिट्टे मंगोल शक्लों वाले आदमी नहीं, मिर्जा साहब तो कह रहे हैं कि मैं मुगल हूँ अपनी बुक में, फिर कहते पूरे हैं पट्टी होते हैं। कहते हैं कि मैं मुगल नहीं हूँ, मैं तो फारसी हूँ। वो फारिस में भी मैं आपको पेज नंबर दूं बुक का, पढ़े। ईरान में भी बहुत ज्यादा मिर्जा ठीक है। है, ईरान के उनको ऊपर खुद ही नहीं ताजिकिस्तान, पता मिर्जा साहब को कि किर्गिस्तान, मैं सारे कौन हूँ। रशिया में भी मिर्जा कौम बहुत ज्यादा है। भाई चंगेज साहब- खान जिस रूट से आया था वादे साहब- वो सारे रूट पे मंगोल आपको मिलेंगे, मिर्जा लोग डॉक्टर साहब, मिलेंगे। मैं आपको जुबानी बात कर रहे हैं, मैं आपको पेज नंबर दे रहा हूँ, जमीमा बराहीन अहमदिया सफ़ा नंबर 5 पे मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं मुगल हूँ। फिर रूहानी खजाइन में जाके वो कह रहे हैं कि मैं मुगल नहीं, मैं तो फारसी हूँ। इसका जी। मतलब है कि उनको तो खुद ही नहीं पता वो कौन है। प्यारे भाई मेरी बात सुने, मिर्जा आप लोग कैसे ईरान में भी उनको- बहुत ज्यादा उनका- रहते हैं, ईरान में भी बहुत मिर्जा रहते हैं, रशियन रियासतों में भी मिर्जा आते हैं, वो मिर्जुआ भी कहलवाते हैं, बहुत ज्यादा है। को मीर्जा कहलवाते हैं, को मीरजुआ कहलाते हैं, को और भी मिलता जुलता नाम लेते हैं। ऐसा तो गुलाम मोहिउद्दीन क्या था? यार जिसका नाम गुलाम मोहिउद्दीन हो वो चूड़ा हो सकता है? आपके दिमाग काम करता है कि आप मैंने पागल हो गए आपको नफरत कहा में? नहीं कि चूड़ा ग्रुप जो है सिख मुसलमान और ईसाई मजहब में तब्दील हो गए थे, मैंने आपको कहा नहीं है ये? यार वो पट्टी आपको कहलवाते समझ नहीं हैं, ऐसी चूड़े आप बात को। सुनते नहीं वो है। पट्टी बनते हैं या कुछ लोअर कास्ट दाने पुड़ने वाले पट्टी बन जाते हैं या मुसल्ली बन जाते हैं। अच्छा भाई जी, वो नहीं होते, उनको बड़ी कास्टों वाले नाम नहीं उनके होते, नहीं तो वो लोग पूछ लेते हैं कि सैयद काला हो तो पूछते हैं यार तू कितों सैयद हो गया, तेरा तो रंग बड़ा काला है। वो अच्छा, मुझे पठान ये काला हो जाए वो भी तीन मुसीबत भाई पड़ थे, जाती है, शाह तीन- काला हो जाए वो भी मसला है। भाईजान 3 भाई थे, मिर्जा गुलाम मुर्तजा, मिर्जा गुलाम हैदर, मिर्जा गुलाम मोहिउद्दीन। हाँ इनके वालिद का नाम था अता मोहम्मद। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ गुलाम मोहिउद्दीन जिसका बेटा मामुद्दीन है। ठीक जी। है। जो 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 अता मोहम्मद किसी चूड़े का नाम हो सकता है? ओ भाई जी, मैं रिश्तेदारी बता रहा हूँ मैं आपको उन लोगों की। आप उनके रिश्तेदारों में से कोई चूड़ा निकाल के दिखा दें यार। हाँ, आप यही अजीब तो उल्टी मैं बातें, बताने लगा। Thank you होली very स्पिरिट much। की बातें मत सुना करें, उसकी ठीक है, thank you बातें very जो है फाड़ के फेंक दिया करें, वो ठीक है, पागल मैं आदमी। यही बता। अच्छा, मामदीन की जो बेटी थी करशीद बेगम, उसकी जो शादी हुई थी मिर्जा गुलाम अहमद के बेटे सुल्तान अहमद के साथ 1983 में, उस शादी में मिर्जा मामुद्दीन का वालिद मोहिउद्दीन, गुलाम मुर्तजा शादी जिन्होंने शिरकत की थी ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਿਉਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੂੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? यार अजीब और गरीब बात कर रहे हैं, वो एक यार फजूल सी अजीबो कोई गरीब बात कर रहा हूँ मैं। दीदे हक कोई लिख के बैठ गया और वो पुलिस स्पिरिट ने रख लिया मिर्जा पास। साहब की बुकें समान से आई थी, वो दीदे यार हक मेरी की बात सुने, वो समान तो से मिर्जा निकली थी। साहब का बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके बैठा हुआ है, दाई का बर्थ सर्टिफिकेट। अगर मैं आपको ये कहूं कि मिर्जा ने मामुद्दीन की कॉपी की है, वो इससे ज्यादा लायक था, वो अच्छा राइटर था इससे, तो फिर आप ये बात मानेंगे? आप उनको मान लें सर, आपको 100% इख्तियार है, लेकिन पुलिस आप स्पिरिट की सच बात की सुनना तरफ नहीं यार। जाते, आप सच की तरफ नहीं जाते, आप इल्जाम तराशी पे आते हैं। इल्जाम तराशी क्या करूं सर, कभी चूड़े मैंने पट्टी देखे हैं, कभी मिर्जे चूड़े नहीं देखे। आप मुझे माफ कर दें अगर मैं भी पंजाब में 36 साल गुजार के आया हूँ, अच्छा, सारे मैंने देखे। वो मतलब कि पट्टी होते हैं ज्यादातर, जोसेफ पट्टी दे फलाना पट्टी, वो कभी मैंने को मिर्जा चूड़ा तो नहीं देखा यार, मुझे माफ करें मेरे नॉलेज पर। फिर आमर भाई अस्सलाम वालेकुम। कोई और बात करें अच्छी सी। अच्छी सी बात करें आप। अच्छा, इसकी क्या वजह है वाटर साहब, इसकी क्या वजह है कि आपने क्रिश्चियनों में देखे हैं चूड़े, या जिस तरह आप कह रहे हैं हिंदुओं मुसलमानों में भी आए हैं? पता है इसकी बैकग्राउंड क्या है? कोई पता है आपको चूड़े कहाँ से चले हैं? असल में ना उमर साहब ये गरीब लोग थे, ये शूदर कास्ट के हाँ, लोग थे। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ये ही लोअर ईसाइयत भी आई है हिंदुस्तान में या और भी मजहब आए हैं, तो इन्होंने उन मजहबों में शमूलियत इख्तियार की है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बेचारे जो थे अपनी गुर्बत की वजह से और हिंदुस्तान की हालात की वजह से वहां भी ज्यादा मकबूलियत नहीं पा सके। नहीं, लेकिन उन्होंने हाँ छोड़कर क्रिश्चियनिटी में और मुसलमानों में उन्होंने ज्वाइन किया है, ये बात ठीक है, लेकिन हाँ जी, बुनियादी तौर बिल्कुल पर ये सही बात है। बुनियादी तौर पर ये हिंदुओं की एक लोअर कास्ट थी। हाँ जी, तो जब वो वहां से आ गए इस तरफ, कुछ मुसलमानों में दाखिल हो गए, कुछ क्रिश्चियनों में दाखिल हो गए। तो जब मुसलमानों में दाखिल हो गए तो मुसलमानों में वो पट्टी हो, मिर्जा हो, कुछ भी हो, वो कोई भी किसी भी कास्ट से हो सकता है, लेकिन पीछे उसका खानदान
बाप दादा परदादा, वो नहीं हो सकता उसका उसी खानदान से ताल्लुक वहीं से नहीं आया हुआ होता। जो इमाम दीन, यार ये रेल साहब आए हैं तो म्यूट कर लें, मॉडरेटरों को बड़ा शौक है कि भाई चुक चुक के बंदे उत्ते सुटने, ज़्यादा बंदे होंगे ज़्यादा गल होगी। जो इमाम दीन ने अपने बाप दादा का लिखा है, और सीरतुल महदी में भी ये बात लिखी हुई है कि मिर्ज़ा साहब के एक मुरीद ने कहा भाई असल मसला ये है कि हम चूड़े थे, हम मिर्ज़े हो गए, चूड़े से मिर्ज़े हो गए। आप इमाम दीन को कहने लगा आप मिर्ज़े थे, मिर्ज़े से चूड़ों के पीर बन गए। वो चूड़ों का पीर था ना, पता है आपको, इमाम दीन, यही उसने लिखा हो ना अपनी किताब में। तो बहरहाल इनका ताल्लुक तो था उस ख़ानदान से। ये मैं नहीं कहता कि जब ये पैदा हुए मिर्ज़ा साहब तो ये मतलब उस हिंदू मज़हब से थे, लेकिन इनका पीछे ताल्लुक उसी ख़ानदान से है। जी इमाम दीन बिल्कुल के है। मुताबिक, इनकी इमाम दीन रिश्तेदारी है जी उनके साथ, बिल्कुल है। इमाम दीन के मुताबिक इनका ताल्लुक उसी फैमिली से है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इनका बाप मुसलमान, इनका दादा मुसलमान, इसका इनकार नहीं करना चाहिए। वो वहाँ पर मौजूद है, गुलाम मुर्तज़ा नाम है, कादर बेग नाम है, गुलाम कादर नाम है, तो ये सारे मुसलमानों वाले ही नाम है। लेकिन इनका पीछे जो बैकग्राउंड है ख़ानदान का, वो उस चूड़ा फैमिली से हो सकता है। ये कौन सी बात। तो चूड़ा दरअसल वो एक लोअर कास्ट थी, लोअर कास्ट, जी बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। वहीं से ये आमिर लोग साहब, ये भी तो मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है ना कि अकबर बादशाह के दौर में उनके पास जमीन का इतने गांवों का इंतजाम था, उसके बाद इतना हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का दौर शुरू होने में इतना रह गया। यार चूड़ों के पास कहाँ इतनी जमीनें और मुरब्बे होते मेरा हैं? जेड़ा परदादा ही ना ओ अकबर बादशाह जेड़ा है ना वजीर आला ही आखन नाल की होंदा है आप अपना वाटर साहब। और नहीं भाई, और नहीं इस तरह की बात वाटर नहीं। साहब अब भाई, जिनकी वो जो जमीन भाई हम छोड़ दिए अच्छा ना, अच्छा अच्छा, मैं वाटर साहब आपको एक बात सारे बता देता कीड़े हूँ। हमारे में ही नजर आने हैं। वाटर ये साहब, बातें बेफायदा होती मिर्जा हैं। साहब ने अपनी जमीन के बारे में जो गलत बयानियां की हुई है ना, उनको शेख बटालवी ने भी रसाला शातु सुन्ना में झुटलाया हुआ है कि इस बंदे ने अपनी जमीन के बारे में जो गलत बयानियां और दरोग गोई से काम लिया है, ओलब किया है कि मैं जनाब बहुत बड़ी ज़मीन मेरी 10,000 का मैं जगीर का मालिक, उनका सारा झूठ इस बंदे ने लिखा हुआ है। तो ये बात तो तय है कि मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर बातों में गलत बयानियाँ तो की हुई हैं और दीगर बातों में भी की हैं। ये सिर्फ ज़मीन के मामले में ही नहीं है, हर मामले में उन्होंने झूठ बोले हुए हैं। मतलब जिस बंदे को कहते थे ना मिर्ज़ा साहब ये फ़लाँ बंदा मुझे मिला था फ़लाँ जगह, सामने खड़ा होकर बंदा कह रहा होता था कि मैं आपसे नहीं मिला, आप गलत बयानी कर रहे हैं। डॉक्टर जगन्नाथ के बारे में जो कुछ ज़ाला हमें लिखा था, डॉक्टर जगन्नाथ चीख उठा कि ये क्या झूठ बोल रहे हैं आप मेरे बारे में। मैं यहाँ जम्मू में मौजूद हूँ, राजा अमर सिंह का मुलाजिम हूँ और हकीम नूरुद्दीन भी वहाँ पे मुलाजिम है। तो जो कुछ बात हुई है हमारे दरमियान, उसका यहाँ पर मतलब एक कसीर तादाद है लोगों की जो गवाह है। तो आपने मिर्ज़ा साहब ये क्या गप जड़ दी है। अज़ाला बंदे सामने खड़ा होके कह रहे होते थे कि मिर्ज़ा साहब आप झूठ बोल रहे हैं। ये अब्दुल्ला कश्मीरी जिसको कहा था कि वो श्रीनगर वाली कब्र का ज़रा पता करके बताना, अब अब्दुल्ला कश्मीरी सामने खड़ा होके कह रहा है कि ये खत मैंने लिखा है, ये रूहानी खज़ाइन की वो कौन सी जिल्द है, मेरे ख्याल 13वीं या 11वीं जिल्द में, वहाँ पर लिखा हुआ है राज़े हकीकत किताब में, मेरा ये खत है, देख लो इसमें मैंने कहाँ ये बात कही है कि श्रीनगर के लोग इसको ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मानते। लेकिन मिर्ज़ा साहब झूठ बोले जा रहे हैं, सामने उसका खत भी रखा हुआ है। तो मिर्ज़ा साहब ने अगर अपनी ज़मीन के बारे में भी, जागीर के बारे में भी झूठ बोल दिया हो तो ये कोई अजीब बात नहीं है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ तक सही है बात, लेकिन अगर इनका ताल्लुक पीछे से चूड़ा खानदान से हो तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी ऐब वाली बात है। चूड़ों की तरफ से लोग मुसलमानों में भी आए हैं, ईसाइयों में भी आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आमिर साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि दीदे हक में ये जो मामदीन है ये कहता है कि हम चूड़ा फैमिली से हैं। हाँ हाँ, उसने बताया अपना जो अगर ठीक है, वो सच बोल रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि ये जो इमामुद्दीन की जो बहन थी हुरमत बीबी ते उमर निसा, हुरमत बीबी की जो शादी थी मिर्ज़ा गुलाम कादर के भाई से हुई थी, आपको पता ही होगा। तो ये जो मोहम्मदी बेगम थी, ये जो थी बेटी थी उमर निसा की बेटी थी, ये उमर निसा की बेटी थी। तो ये भी इमामुद्दीन की फैमिली से हुई।
اگر چوڑا فیملی ہے تو یہ پھر آپس میں رشتہ داری کیوں کرتے تھے؟ مرزا صاحب بھی اگر عاشق ہوئے جا کے اسی پہ اس چوڑا فیملی چچا زاد بہن تھا، وہ تو چچا زاد بہن تھی ان کی، جو ہاں جی، بیگم کی والدہ تھی نا، اور بڑی کلوز رشتہ داری ان کی آپس میں رشتے ہاں کی ہاں ہے چچا زاد بہن، امام دین کی، نظام دین کی وہ بہن ہے۔ تو نہیں، آپ آگے سے بھی ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ وہ جو مرزا صاحب کی، واٹر صاحب مزیدار بات آپ کو بتاؤں، تذکرہ میں ایک الہام تھا، امام دین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے، کبھی پڑھا ہے آپ نے واٹر صاحب؟ وہ نکال دیا تھا جب مرزا طاہر صاحب آپ کے تھے نا بنے ہوئے خلیفہ، وہ 2004-05 والے تذکرہ میں نکال دیا گیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ ڈالا گیا ہے 2022-23 کے تذکرہ کے ایڈیشن میں، اس کو دوبارہ ڈالا گیا ہے۔ کوئی پتہ ہے کیوں؟ امام دین کا اور مرزا صاحب کا مطلب اس کے بیچ میں کیا پرابلم تھی، کیوں وہ نکالا گیا الہام؟ امام دین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے کیونکہ امام دین کی وہ پوتی لگتی ہے جو مرزا طاہر کی بیوی ہے۔ جب مرزا صاحب نے یہ الہام پیش کیا نا، امام دین کی کنچنی بیوی یعنی کنجری بیوی گر پڑی ہوئی ہے، تو مرزا طاہر کی بیوی نے کہا، دیکھو تیرے دادے موت مارے نے کی نیر پایا وے میری نانی دے بارے، میری دادی دے بارے کی لکھا ہے موت مارے نے، او کنجری سے میری دادی۔ اس نے چیخ کے رو کے مرزا طاہر کو مجبور کیا، اور مرزا طاہر نے وہ الہام تذکرہ سے نکلوایا، جس سال نکلوایا اسی سال وہ فوت ہو گیا مرزا طاہر۔ اب انہوں نے پھر ڈال دیا ہے 2022 کے ایڈیشن میں۔ اگر آپ یہ آخری 2 ایڈیشن کھول کے دیکھ لیں گے، ہماری بات کو آپ بے شک نہ مانیں، خود جا کے کھول کے دیکھ لیں alislam.org، اور اپنے بندوں سے پوچھیں کہ اس میں کیا ڈیفیکٹ تھا، کیوں یہ نکالا امام دین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے۔ یار عامر صاحب، میرے پاس تو ایسی باتیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہ انہوں نے آپ کی خوشی کے لیے دوبارہ ڈالا ہے، میں بس اتنا کہ عامر نذیر بڑی محنت کرتا ہے، یہ دوبارہ ڈال دو تاکہ عامر نذیر کو نہ مجھے کیا لینا دینا، میری طرف سے ڈالے نہ ڈالے، میں تو ہیرا پھیری ہے، وہ پکڑی گئی۔ عامر نذیر کی 2 سال عمر بات جو ہے نہیں، ڈالے، اس سے نہ ہماری فتح نہ آپ کی کوئی شکست ہے، یہ تو ایک دکھانے کا ایک مثال ہے کہ اس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جی اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے یہ معاملہ تھا، امام دین کی بیوی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا کہ اس کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے، وہ لکھنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کی رشتہ داری ابھی بھی ہے، امام دین کی وہ پوتی لگتی ہے یا پڑپوتی لگتی ہے جو مرزا طاہر کی بیوی تھی۔ آپ چیک کر لیں، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اب عامر صاحب اگر آپ ان کا فیملی ٹری لگائیں نا، فیملی ٹری ابھی، تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، صرف غلام مرتضیٰ کا فیملی ٹری میں نام دیا ہے، غلام حیدر اور مرزا غلام محی الدین کو فیملی ٹری سے ویسے ہی نکالا ہوا ہے انہوں نے، اور باقی ان کی 70% رشتہ داری انہی کے ساتھ ہے، اور فیملی ٹری سے ان کو نکال دیا ہے انہوں نے، اس کو چھپانے کے لیے، ہائیڈ کرنے کے لیے کہ یہ چوڑا فیملی سامنے نہ آ جائے کہ ہم چوڑا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح یہ ہائیڈ کرتے ہیں۔ میرے پاس آپ نے نا بڑی اچھی جگہ پہ آپ نا جوائن کر لیا ہے، آپ اچھی اچھی باتیں کیا کریں تاکہ ہم آپ سے اچھی اچھی چیزیں سیکھیں۔ میں اللہ کے آپ فضل کا سے وہ آج بھی جماعت احمدیہ کی طرف ہی رہتا ہے، بات یہ ہوتی ہے جب اچھی جگہ پہ چلے گئے ہو پھر تو آپ کو ہمارا خیال ہی نہیں آنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ میرے پاس ابھی ایک بات سن لیں میری، میرے پاس نا ابھی کو نا $2-3 ملین آ جائے نا، یقین مانے میں کبھی پوچھوں بھی نہ کسی بندے کو، میرے پاس ٹائم ہی نہ ہو انجوائمنٹ کے علاوہ۔ اس کا کیا مطلب؟ نو، ہم تو جوائن نہیں اگر آپ اچھی جگہ پہ چلے گئے ہیں تو آپ کا احمدیوں سے کیا لینا دینا یار؟ بندہ تو بری جگہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، آپ کو جیل ہوئی ہو اس کے بعد آپ آزاد ہو جائیں، بلکہ آپ کبھی جیل جانا پسند کریں۔ بس میں نے تو کوئی ایسا کلیم نہیں کیا، آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں جی، انفارمیشن اچھی جگہ تو میں عمرہ کر کے آیا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس ہے۔ چوڑے جلسے کی جگہ میں عمرہ کر کے ہوں اللہ کے فضل سے۔ بھائی واٹر صاحب میری بات سنیں، اب آپ گالیاں ساری عمر ان کو خوش کریں گے۔ واٹر صاحب میں اسی کا نام دیا ہے جلسے کا جو ہسٹری میں ہوتا آ رہا ہے۔ احمدی سے غیر احمدی ہونے کا جو کلمہ ہے نا، اس میں گالیاں شامل ہیں احمدیوں کو دینا۔ آپ ساری عمر گالیاں نکالیں گے اور ان کو ثبوت دیں گے کہ میں تمہارے میں سے گالیاں تو آپ دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں 20 ڈیز میں رمضان میں 20 ملین لوگوں نے وزٹ کیا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، یہ دوستی ہیں، 73واں فرقہ ہم احمد۔
यार ये बच्चों वाली बातें जो है ना, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके अमाल अच्छे होंगे जन्नत में वो ही जाएगा, फिरकों से कोई जन्नत में नहीं फिर आप जाता। लोग क्यों कहते हैं जी 73वां हमारा हम जिंदी हैं? और यार ये तो आप बचपन लोग से ही बता कहते रहे हैं, हैं। ये आप लोगों से ही सारी हदीसें हमने ली हुई हैं। आप लोग नहीं जन्नत के ठेकेदार बन के बैठे हुए कि कोई कादियानी नहीं जन्नत में जा सकता। तो जब 73 में हाँ, तो आप हकीकत जन्नत के देखी, मालिक तो हैं। चूड़े निकले अंदर से। जन्नत का मालिक अल्लाह नहीं है? चले तो जी, बस ऐसी बातें हैं यार, दोनों तरफ आप अपनी वफादारी का सारी जिंदगी देते रहना इन्हें सब। अल्लाह ताला जी आप अच्छे आदमी हैं, आपको तौफीक दे कि आप भी कलेक्ट करें ट्रुथ इन्फॉर्मेशन। और सर मुझे गुड और बैड सारी इन्फॉर्मेशन पता है। मैं किसी वजह से, आप कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब कर सकते हैं। आपने हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप आपने करनी नहीं, क्योंकि आपने इसको कल्ट को छोड़ना ही नहीं है। तो नहीं छोड़ना हमारी नहीं, मर्जी है। वाटर साहब छोड़ देंगे, वो हैं इस फेज से गुजर रहे हैं, यानी शशो पंज में पड़े हुए हैं कि मैं, लेकिन वही है कि इनके ज़हन में वो ना चीजें डाली गई हैं। ग्रूमिंग हुई हुई है अमर साहब, हाँ, मेरी छोड़ोगे तो बरेलवी बनना है कि देवबंदी बनना है। हालांकि सिंपल बात है, आपने मुसलमान बनना है। दूसरा ये है कि आपने किसी ऐसे बंदे का मजहब या दीन आपने इख्तियार नहीं करना जिसने आपको या आपके घर वालों को गालियां दी हुई हैं। ना उसका वो दीन है, ये दीन मोहम्मद अरबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और का है। आपने उसमें आना है। तो आपको ये जो पढ़ाया जाता है ना, जहर घोला जाता है, वो इन मौलवियों ने, तो याद है तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था? वो इन मौलवियों ने, वो तुम्हारा वो खत्म नबूवत वालों ने ये किया, गालियां दी और दुकान को आग लगा। ये जितने वाकयात हैं, ये जितनी बातें हैं, आपने इनके मजहब में नहीं आना। ये नफरत भरी हुई है, इसीलिए लोग मुल्हिद हो जाते हैं, इल्हाद की तरफ चले जाते हैं, इस्लाम की तरफ नहीं आते। तो अमर साहब झूठ भी तो नहीं है ना? आप भी तो हर जुम्मे पे कुट्टे लगा के बैठे होते हैं। कोई एक आध बंदा शहीद किया होता है, कोई आपने नहीं, जनाब तो आपने उसका इस्लाम कबूल करना। इस्लाम उसका है जिसने वो सारे कोई आपकी तो भाई होते हैं। नहीं, वो बेकसूर अहमदी बंदा, तो होते मान नहीं। ले, एक मिनट के लिए मान ले, तो अहमदी किसी तो बंदे कातिल कभी नहीं आपने दिखाया ऐसा। सुन तो ले, अब मेरे गांव में कातिल है, अहमदी ने अहमदी को कत्ल किया है। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। तो ठीक है, उसने कत्ल किया तो उसे सजाए मौत होनी चाहिए। तो मैं बस ऐसे ही है, मैं ऐसे ही कहूंगा है। कि नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अब है कि आपने अगर हर किसी जुम्मे पे नमाज पढ़ते हुए बंदे रोके हैं। अगर आजकल किसी बेकसूर, TikTok पे वीडियो आ रही होती है सुन अमर तो साहब, लेना। आप लोग जुमा पढ़ते हुए लोगों को पकड़ रहे हाँ होते हाँ हैं। यार, जुमा मेरी पढ़ने बात जा तो रहे सुन हैं। लेना यार, बात तो सुन ले वाटर साहब। ये हाल है यार ये आप लोगों एक्सट्रीम लेवल की बातें बयान करके आप एस्केपिज्म में ना जाया करें का। कि यार ये लोग, एक्सट्रीम लेवल की बातें आपके साथ हमेशा थी और रहेंगी। मतलब हमारी सोसाइटी में इतनी गलतियां मौजूद हैं कि खुद आपका कादियानी बंदा है, वो कादियानी को कत्ल कर रहा है। उसमें कोई है मजहब का मसला? जहालत है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ लोग जाहिलाना तर्ज अमल, हालत आपने ठीक करनी है कि मैंने आके आपकी तो जमात आपने में अपनी ठीक कर ली है, आपने अपनी कर ली है ठीक। तो आप लोगों से तो बहुत बेहतर है। हम क्या तो नहीं बेहतर है? लोगों को क्या नमाजों बेहतर से है? रोकते। 4 टोटरू हैं आप और एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो। ओ यार 4 टोटरू ही सही, हम 4 टोटरू मिलके नमाज पढ़ लेते थे तो आपको तकलीफ होती थी। यार आप नमाज मस्जिदों को बंद किसने करने पे आ आपको, गए हो। ओ मेरी बात सुने वाटर साहब, जुम्मा नहीं हुआ पिछले महीने में ओ हमारा। भाई क्या करना है आपने जुम्मा करके? अब एक अब झूठे पता नहीं मुदय्ये ईद की नबूवत नमाज भी होती है कि की, नहीं। झूठे मुदय्ये नबूवत को फॉलो करके तो आप अपने साथ झूठ बोलना चाहते हैं। मैं जुम्मा पढ़ने चलना, मैं आपने नमाज तो पढ़ने सच्चे को चलना। फॉलो किया था ना। आप सच्चे को फॉलो करते हुए कहाँ सच्चे ने कहा हुआ है कि दूसरों की नमाजें बंद कर दो। भाई ये नमाज आप तो तो है ही सच्चे को follow नहीं, करते और हैं ना। नमाज तो आपकी है ही नहीं ना। नमाज तो और मुसलमान चलो हमारी नमाज ना हो गई, हमारी पूजा हो गई। बताओ पूजा तुम्हारे पाठ ही सच्चे करनी है, लेकिन मुदय्ये हमें नबूवत ने कहाँ पे कहा हुआ है कि हम पूजा नहीं बंद नहीं, कर दो। बिल्कुल हमारे नबी की ये तालीम नहीं है कि कोई बंदा अपनी पूजा पाठ में मसरूफ हो, अपने घर में, अपनी 4 दीवारी में, जाती प्रॉपर्टी में। हमें हमले का हुक्म हमारे नबी ने नहीं दिया, और शाबाश। कानून भी नहीं है, कानून भी नहीं है। शाबाश। वाटर साहब, ये कानून में भी नहीं लिखा हुआ यार। आर्टिकल 20 आपको इजाजत देता है कि आप अपनी इबादतगाह के अंदर शाबाश। भले मिर्जा कादियानी का बुत रख के उसकी पूजा करते रहे, जहन्नम जाए, शाबाश। कोई बिल्कुल मतलब। सही। लेकिन जो बंदे एक्सट्रीम ज़हन के मालिक या सोच के मालिक होते हैं, वो कानून को हाथ में लेकर ऐसे ही वो बंदा कत्ल कर देते हैं, जिस तरह वो आपका आपके खुद बंदे हैं, कादियानी ने सब कादियानी को आपके कत्ल कर बंदे हैं। वो सब आपके बंदे हैं। यार हमारे अच्छा बंदे नहीं है। अच्छा यार, सारे ये टिकटॉक पर गालियां दे, जिन्होंने मुझे गालियां दी वो भी मेरे ही बंदे हैं, जिन्होंने आपको गालियां दी वो भी आप मेरे यार ही बंदे हैं, आपका ठीक तो है? अपना दोस्त अथर हाँ, ये तलत वही होगा, मैं आपको कहता- मैं 10 वही गालियां कह- देता है, आप फिर उसके पास ही चले जाते मैं हो। वही कह रहा हूँ कि मुझे ये 2-10 सारे गालियां मैं नहीं आता आपके पास। आप वाटर साहब ये कह रहे हैं ना आपके, ये मेरे ही बंदे हैं। जिस तरह अहमद जट आपका बंदा है, उसने हाँ जी। आपकी माँ बहन एक की, लेकिन आपका बंदा है। तो यार मैं तो नहीं ना उससे मिलता। तो मैं किन से मिलता हूँ?
जिन्होंने तल्लत आपके ज़हूर बंदे से जब बेकसूर तक ना आप डालें रोज की 2 जफ्फियां, किसके साथ? आपको किसके- चैन ही नहीं आता। किसके साथ? तल्लत ज़हूर से 2 जफ्फियां और 5 पपियां जब आमिर तक आप भाई रोज ना वो करें। नीचे अच्छा तल्ला जोर मेरा आमिर 1000 भाई- यूरो दे देना, मेरी बात सुने वाटर साहब यार। आमिर चुप भाई करो। नीचे एक कमेंट देख लें, वो कह रहा है अगर जमात अहमदिया सच्ची नहीं है तो फिर दुनिया में कोई दीन है ही नहीं। ठीक यार छोड़ें यार नीचे। मैं ये कह रहा हूँ वाटर साहब कि आप ये 1000 यूरो मुझे दिलवा दें जो उसने हारा हुआ है और वादा किया हुआ है कि मैं 1000 यूरो दूंगा। अब वो 1000 यूरो दिलवा दें, उसके बाद अगर कहेंगे तो हम तल्लत और मलक से जफ्फी डालेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं डालें। हमें क्या लेना देना यार तल्लत और मलक से। यार वो इतना बेवकूफ है ना, उसने आपको 1000 के बजाय ना 2000 यूरो दे देने हैं। ये मेरी कब बात देना है वो, कब देना? हमारा गला खुश्क हो गया मांग मांग के। आप ये देख लेना, वो मुझे इतना बेवकूफ आदमी लगता है कि उसने 1000 की जगह 2000 यूरो आपको देना है और फिर उसने 2 साल पिटना है। नहीं ना दे रहा, नहीं ना दे रहा यार। कल रात को भी चीख चीख के उसकी बरात पे मैं गया, मुझे कहता है 24 मिनट मेरे सामने बात करता रहा, तो मुझे कहता है अब तुम 48 मिनट बात कर लो। मैंने कहा अगर तुम सह गए मेरी बात तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा, तुम 2 टग्गों वाले जाटो। 12 मिनट मैंने बात की, मुझे गालियां देकर उतार दिया। 12 तो मिनट बस- नहीं बर्दाश्त कर सका। आपको चैन नहीं ना आता, आपको शौक है उससे गालियां खाने का। नहीं गालियां, मुझे 1000 यूरो चाहिए जो उसने जुबान की हुई है। वो फतह है हमारी और उसकी शिकस्त है। उसने झूठ बोला, झूठा इल्जाम ज़िया भाई पे लगाया है और धोखा किया, फ्रॉड किया है। मैं वो 1000 यूरो लूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप कहेंगे तो लेंगे, जब फिर डालेंगे, नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे। आपको मैं 1000 यूरो के बजाय 2000 यूरो दिलवा दूंगा, लेकिन आपने जो है ना, अब बात ये है कि मैं एक तो हराम खाता नहीं हूँ और दूसरी बात ये है कि मैं अपना जो है ना कोई किसी किस्म का मतलब कि राब्ता जो है वो जाहिर नहीं करना चाहता। नहीं तो आपको 2000 यूरो मैं दिलवा दूं। मुझे आप 1000 दिलवा दें और मैं ये वादा सबके सामने करता हूँ, मेरे पर वो हराम है। 1 सेंट भी उसमें से टच भी करूं तो हराम है। मुझे क्या नहीं, लेना नहीं। देना पैसे से? ये मेरी हाँ वो तो बात की- ये हमारी बात की फतह है, असूल की फतह है। हमें 1000 यूरो से दिलचस्पी नहीं है। लेना इसलिए है ताकि लोगों को बताया जाए कि ये झूठ बोलते हैं यहाँ पर। वो मैंने जरूर लेना, आप वो दिलवा दें। उसके बाद मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो तल्लत मलक जो है वो जफ्फी उससे डालनी है नहीं डालनी। पागल है, सियाना पता है। है कि इस वक्त जो है ना टिकटॉक के हालात बहुत खराब हैं। वो बात ये है कि इस वक्त यार हालात तो खराब है। वो दे रहे हैं ना, राना राशिद अपने हिस्से का दे रहा है, टाक मास्टर ख्वाजा रेहान वो दे रहे हैं, आप भी कुछ हिस्सा डालेना। मैं यकीन माने मैं तेली नहीं कभी दूंगा, क्योंकि मुझे वो पता है कि वो ऐसा बेवकूफ आदमी है कि वो आपको ना 2000 क्या वो आपको 4000 यूरो भी दे तो देगा। कहाँ से आप दिलवाएंगे फिर? अगर खुद नहीं देंगे तो कहाँ से कहते हैं दिलवा दूंगा? बस ये मैं आपको ना सारे लोगों के सामने बता नहीं सकता, और बदकिस्मती से मेरी आपकी प्राइवेट में मुलाकात नहीं है। कर दे, मुझे मैसेज कर दे, मैं कॉल कर लेता हूँ व्हाट्सएप। नहीं बस अभी ठहर जाए, कोई बात नहीं है। ये आपके जो जुए हैं ना, ये भी आपकी दुश्मनियों की तरह के ही हैं। मैं लानत भेजता हूँ जुए पर, मैं लानत भेजता हूँ जुए पर। ना जुआ आप हम नहीं लोगों से खेलते। जफ्फी और पप्पी मेरी किए बात बगैर सुने, दिन गुजार- मेरी बात सुने। हमने उसको इनाम रखा था। जुआ तो खुद ये बनाते हैं, हम तो नहीं जुआ खेलते ना जुआ बनाते। जब वो झूठ बोलकर इल्जाम लगाएगा, ज़िया भाई पर झूठ बोलकर इल्जाम लगाया, देखो जी ये कल कह रहा था मिर्जा साहब ने 1901 वाले हवाले में, ताउन वाले हवाले में झूठ बोला, नई शरीयत कर दी। ज़िया भाई ने कहा ये झूठ ना बोलो, बकवास ना करो, मैंने ये बात कल नहीं कही। अगर तुम ये बात मेरी दिखा दो, मैं तुम्हें 500 यूरो दूंगा। ये ज़िया भाई ने कहा। जुआ शुआ नहीं हम खेलते यार, हम लानत डालते हैं जुए पे। हमें 1000 यूरो दिलवाएं। कैसे दिलवाना है? मैं आपको व्हाट्सएप नंबर सेंड करूं? आपको बस मैंने कह दिया है, आपको पैसे मिल जाने हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूं? मैंने कहा आपको कोई नंबर भेजने की जरूरत नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, आपको पैसे मिल जाने हैं। कब आप- तक? कब तक? इसमें 3 दिन भी हो सकते हैं और इसमें 3 हफ्ते और 1 महीना भी हो सकता है। 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। सब चीजें हो जाएंगी। और ये सारा का सारा काम जो है ना, ये आपने सिर्फ ये वाली बात सोचनी है कि आप माशाल्लाह फास्ट बॉलर रह चुके हैं। आपने जो है जो उसका कैच कैसे निकलवाना है। कैच भी मैंने निकलवाना है, कैच भी मैंने निकलवाना है वाटर साहब। तो फिर हाँ जी। आपकी मेहरबानी क्या? हम आप हमें किस बात की तसल्ली दे रहे हैं? अमर साहब कैच कटवाना भी आप ते फड़ना भी आप। हाँ हो तो तुम नहीं नहीं, फड़ तसल्लियां सब दे ही रहे हो? रहेगा। आपने पता है क्या करना है? ऑफ पे जो है ना गुड लेंथ बॉल फेंकनी है एक खास स्पीड में, और साकी को खड़ा कर देना है आपने किसी बाउंड्री पे ऑफ साइड पे, और कैच हो जाएगा वो खुद ही।
ऑक्सटम ते आग। हाँ जी, ऑफ स्टंप पे गुड लेंथ बॉल फेंकनी है, वो कैच देगा, आपने पकड़ लेना। और फिर वो मैंने वाहिद आदमी देखा है जो जीत के भी इतना पिट रहा है। अगर मैं जीता होता ना तो मैंने छुट्टियों पे चले जाना था। वो जीत के टिकटॉक पे पहले 16 घंटे बैठा होता था, अब 28 घंटे बैठा। वो जीता है ही नहीं वाटर साहब, उसका जमीर उसको कचौके लगा रहा है कि तुम हारे हुए हो। जीता हुआ होता तो फिर क्यों चीखता और पीटता? पीट इसीलिए रहा, उसको इन मर्दाइयों ने धोखा दिया, आपके भाइयों ने। वो उसको कहते हैं बल्ले बल्ले बल्ले, तू तो बब्बर शेर है, ओए बल्ले मलका, ओए बल्ले मलका, तू तो मलक निकल। उसको ये गुमराह कर रहे हैं। सर वो तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो टिका रहे, क्योंकि उससे रखे नहीं जा रहे पैसे। वो कोई आपको डबल अदायगी ना कर जाए, ये तो हम उसको चुप और के डबल सिंगल ही दे दो, डबल ना दो, सिंगल अदा करवाओ। उसने कैच देना ही देना है, उसने आपको पैसे देने ही देने हैं, हम जितना मर्जी उसे रोक लें। वाटर साहब, हमने इल्मी गुफ्तगू रोकी हुई है कई रोज से, ये हमारा नुकसान, आपका भी नुकसान, आप सुनने वाले हैं। आप ये कोई मदद करें यार, हजार दिलवाएं ताकि बात आगे बढ़ाएं, इल्मी गुफ्तगू की तरफ जाएं, छोड़ें इसको। बात ये है कि आपसे ना बात किए बगैर रहा नहीं जाता। आप 3-4 दिनों के लिए चुप कर जाएं, आप कहें मैं तेरे से नाराज हूं, बस इतना कहना है आपने, उसने आपको खुद पैसे दे देने हैं। नहीं, ये तो वो शुक्र करेगा, ये तो वो शुक्र करेगा, वो मर्दाई उसको गुमराह करेंगे। आप यकीन करो कि उसे आपको जफ्फी पाए बगैर, आपको 2-4 गालें कट के, आपसे गालियां खा के, पप्पी किए बगैर उसे नींद नहीं आती। वो अपनी बीवी से ज्यादा आपसे प्यार करता है। ओ भाई ना हमें ये गोली ना दें, हमें 1000 यूरो दें। आप यकीन करो, मैं आपको बच्चों वाला डायलॉग कह रहा हूँ कि अगर तूने ये पैसे ना दिए तो मैं तेरे से नाराज हूँ, बस देख लो। अगर ना काम करे तो मुझे पकड़ जाना। अच्छा, वैसे कोई सही सीधी राह बताएं, वो कोई बंदे या तो दे दें जो मिल मिला के इसका 1000 यूरो वो पूरा कर दें, या आप कोई अपना हिस्सा डालें, बाकियों को हम तैयार करते हैं। सर जी, मैंने हिस्सा जरूर डाल देना था अगर मुझे हिस्सा मिलता होता। मैं तो 2 के 4 करने वाला बंदा हूँ। अगर तो मुझे हिस्सा मिले तो मैं तो यही हैरान हूँ, $500 लेके वो सारा दिन क्या कर रहा है? उसको तो 4-5 दिन छुट्टी करनी चाहिए। वो उल्टा और ज्यादा पिट रहा होता है बैठा। पिटना उसकी मजबूरी है, पिटे ना तो क्या करे। पिटना उसकी मजबूरी नहीं है, उसकी आदत है। बहरहाल आप इसको कैश कर सकते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हारा हुआ है, पिटना उसकी मजबूरी है। अच्छा, एक बात याद आ गई है, आज सवेरे नासिर भट्ट ने मुझे कहा है कि मैं 1000 यूरो दूंगा, लेकिन दूंगा ठीपों में, 2 यूरो, 1 यूरो 50 सेंट छापर भर के तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। उनको अभी ला हैं? उनको हुने लिया। अल्लाह की कसम, मैं ओदी बराड़ ते चढ़ गया, मैं क्या बाटू दौड़ी ना गल तू। हाँ, मैं क्या आते हुए जरा नशे नसाए हुए ही होवे। आते हुए पैसे तो छोड़ने ही नहीं चाहिए। बड़ी गालियां फिर उसने मुझे दी हैं। मैंने कहा यार ठीक है, छापर भर के ना वो ठीपों का 1000 यूरो, 2 यूरो, 1 यूरो 50 सेंट मेरे मुंह पे मारो। मैं आ जाता हूँ, मेरा कोई भाई आ जाता है, बताओ जर्मनी किस जगह आना है, हम वो 1000 यूरो ठीपों वाला भी कबूल करें। मैं तो 1000 यूरो से करता है ना, हमारा टाइम और हमारी एनर्जी ये खाम खा गलत बातों पे लगवा रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखियो 2 मिनट लगने ने बैंक वाली मशीन च पाने ने ते ओ नोटां च तब्दील हो जाने। अच्छा, नासिर भट्ट के बारे में क्या ख्याल है, वो दे देगा ठीपे कि नहीं देगा? वो कह रहा है मैं 1000 यूरो के ठीपे मारता हूँ तुम्हारे। दे सकता मैं नहीं जानता नासिर भट्ट को। वो दे सकता है अमर भाई। भाई वल्ला आज सवेरे ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है। सवेरे बड़ी ले दे हुई है सवेरे। ਤੁਸੀਂ पक्का अमर भाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं अपनी जुबान से नहीं फेरता। नहीं ते ਉਹਨੂੰ नहीं ते ਪੱਕਾ ਕਰੋ। नहीं ते अमर भाई, अगर उन्हें पैसे ना दिते तो फिर वो कन्फर्म हो जाएगा कि वो MG सही कहता है। ਹਾਂ, ਐਮਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤੱਥ ਰਾਮਦਾ ਤੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਹੈ। लो जी अमर अमर भाई भाई बहुत ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। एंजॉय करें। लो जी एंजॉय करें, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗੁਹਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹੈ, सर पैसे आ गए, बस पक्के हो जाओ। नासिर भट्ट ਨਹੀਂ के ਤੇ ਸਾਰੀ घर के ਜਮਾत बाहर ਦੀ बंदा भेज ਬਿਸਤੀ दो। ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। हाँ जी। अच्छा वाटर साहब, एक मिनट थोड़ा जरा 1 मिनट मेरी गल सुन जाओ। अमर भाई, कल वाटर साहब एक बड़ी मजेदार गल कर गए ने। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਫਲਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ कि पाकिस्तान इंज कोई है ही नहीं, कोई मतलब मौलवियां दा अंडर। यार आमिर साहब को तुम्हारे सवाल नहीं समझ आते, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी हो। आहो ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ 6 ਆਂਡੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ 'ਚ ਨਾ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। नहीं मैं कल ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ। चलो ठीक है, फिर वो रिकॉर्डिंग जहाँ मर्जी सुनाते फिर। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, डन हो गया, जा सकते हो, चले गए हो। हाँ जी साकी भाई। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਡਨ ਕਰੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਸਰ ਡਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਪੇ ਵੀ ਚੁੱਕੂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਠੀਪੇ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਗਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਠੀਪੇ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੌੜੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ, ਨਾ ਕੋਲ ਕਰਾਰ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਓ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਦੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹੋ ਨਾਲ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਾਕੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। आबद भाई हैं? नहीं, यूसुफ भाई आ जाओ फिर उते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अबू बकर बीर भाई, अस्सलाम वालेकुम अमन नज़ीर भाई और मलक इमरान साहब और इज़्ज़त माप जनाब साकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। साकी साहब आजकल किधर गायब होंगे हो, कभी नजर नहीं आए। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਨਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਤੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਸਾਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਕੋਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। अच्छा साकी भाई एक सवाल पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 150 ਜਾਂ 200 ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਕੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬਦ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲੇਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕरेंगे। ਉਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ,
ਇਹ ਅਬਲ ਭਾਈ ਇਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕੋ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਦਲਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਫਹੂਮ ਲੈਣਾ। ਮਫਹੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਾ ਚੁੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। नहीं अबू बकर मीर भाई, जिस जगह तो मैं ये वीडियो देखी तो मैं तो फिर तहकीक अपने तौर पे करन लग पिया कि क्या वाकई ये गल सही है। लेकिन मैं जदों कुरान पाक दी आयात जड़ियां ने दो पढ़ियां, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਦੀ, मिर्ज़ा साहब दी, बशीरुद्दीन महमूद दी, मिर्ज़ा ताहिर दी, ते मिर्ज़ा ताहिर दी ਜਿਹੜੀ अपना ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਹਾਦੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਰੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ। बुखारी है, मुस्लिम है, त्रिमज़ी है, फिर नसाई है, सुनन अबी दाऊद है, ठीक है। इन्हां बुक्कां चों मैं देखता रहा, लेकिन तफासीर मैं पढ़ियां जरूर ने। अगर वो आयात ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਇਤ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आबद भाई, ਵਾਲੇਕੁਮ जी जी, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। नहीं सानू जमात नाल कोई गरज नहीं है। मिर्ज़ा ताहिर दी वीडियो मौजूद है, ना प्रूफ मौजूद है। और माली कुर्बानी जेड़ी जिन्ना आयात की तरफ जिन आयात दे विच ये कुर्बानी करन दा जिक्र है, ठीक है, उन्हां दे विच ते जानवर अल्फाज लिखे ने, माल दा ते लिखी ही नहीं, रुपए पैसे दा ते लिखी ही नहीं है। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨੇ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਜਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਤੱਕ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਲਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਸਭ ਨਾ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਨੂਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਈ ਚੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਚਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੁਆਤਲ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਵੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ 50 ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਨੀਮ ਐਗਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਔਰ ਹੁਜਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਜਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਆਬਦ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ। ਅਲਜਬਰਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ PhD ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ PhD ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ PhD ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, PhD ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਾਇਸ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਗੇਮਸ ਆਫ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਆਥਰ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ in his writings, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਥਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਲਡ ਗੇਮਸ ਆਫ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਲਡ ਗਿਨੀਜ਼ ਆਫ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸਚਾਈ ਦਾ। ਸਚਾਈ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਗਿਨੀਜ਼ ਆਫ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮੈਰੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਬਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।